اماں ایک صاحب کے یہاں پر کام کرتی تھی۔ جب بھی مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی تو کہتی تم بیگم صاحبہ کی مالش کرو اور خبردار مالش کے بنا کمرے سے باہر مت نکلنا۔ جانے وہ کون سی خاص چیز تھی جس سے بیگم صاحبہ کی مالش کرنی ہوتی تھی۔ ایک دن بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب ہوئی تو مالکن کہنے لگی کہ امن کے کمرے سے مجھے دوا لا کر دو۔ میں اماں کے چوری سے باہر آئی اور اماں کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر قیامت ٹوٹ گئی۔ میں اپنے کمرے میں آرام سکون سے سو رہی تھی جب اماں نے مجھے اٹھا دیا اور کہنے لگی اٹھ کر تیار ہو جاؤ، آج سے تم بھی میرے ساتھ کام پر جایا کرو گی۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور اماں سے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ ماں میں بھی کام پر جایا کروں؟ لیکن کیوں؟ اماں کہنے لگی کہ ہاں اصل میں مالک امن کی بیگم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ان کو کمر میں بہت زیادہ چوٹ لگی ہے تو ان کے گھر کے لیے ان کو ایک نوکری کی ضرورت ہے۔ میں نے سوچا کہ اور کوئی بھی تو آ کر کام کرے گی اور تنخواہ لے کر جائے گی تو بھی میرے ساتھ ہی جایا کر، اس بہانے سے تجھے بھی تنخواہ مل جایا کرے گی۔ میں گھر کا کام کر لیا کروں گی اور تم بیگم صاحبہ کو سنبھال لینا۔ اماں کی بات سن کر میں نے حامی بھر لی کیونکہ پہلے بھی میں کبھی کبھی اماں کے ساتھ کام کرانے چلی جایا کرتی تھی۔ میں نے اماں کو بچپن سے ہی کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے باپ کا تو کچھ پتہ نہیں تھا اور ان کا جب بھی جی چاہتا وہ گھر پر آ کر کچھ دن رہتا اور دل کرتا تو یہاں سے چلا جاتا۔ میری ماں نے ہی شروع سے ہم بہن بھائیوں کو محنت کر کے جوان کیا تھا۔ میں 16 سال کی ہو چکی تھی اور مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ ہمارے گھر کے حالات اس کا قابل نہیں ہیں کہ میں پڑھ سکوں۔ اب اماں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی تو میں نے یہی سوچ کر ہاں کر دی کہ میں اپنی تنخواہ سے پیسے جوڑ دوں گی اور پھر کسی کالج میں داخلہ لے لوں گی۔ میں اماں کے ساتھ اس بنگلے میں چلی گئی تھی جہاں اس کا کام شروع ہو جایا کرتا تھا۔ اماں جاتی مجھے کمرے میں لے گئی جہاں مالکن لیٹی ہوئی تھی۔ اماں نے مجھے ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی دی اور کہا کہ تمہیں اسی سے بیگم صاحبہ کی مالش کرنی ہے۔ یہ تو آسان کام تھا تو میں خوش ہو گئی تھی۔ چلو اچھی بات ہے کہ مجھے زیادہ محنت والا کام نہیں کرنا پڑے گا۔ بیگم صاحبہ کی حالت واقعی بہت بری تھی، اس سے تو بستر سے ہلا بھی نہیں جاتا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ بیگم صاحبہ سے بولا بھی ٹھیک سے نہیں جا رہا تھا، بڑی مشکل سے وہ اشارے میں بات کر رہی تھی۔ ابھی میں بیگم صاحبہ ان کے کمرے کا جائزہ ہی لے رہی تھی، تبھی اماں نے مجھے کہا کہ تمہیں جو کام دیا گیا ہے تمہیں وہی کرنا ہے، اور میں تبھی بیگم صاحبہ کی کمر کی مالش کرنے لگی اور اماں کام کے لیے باہر چلی گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے پیاس لگی تو میں نے بیگم صاحبہ کو بتایا کہ میں باہر پانی پینے کے لیے جاؤں تو مجھے اشارے سے کہنے لگی کہ ہاں تم چلی جاؤ۔ میں اس گھر میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی اس لیے مجھے نہیں پتہ تھا کہ کچن کہاں پر ہے۔ میں ادھر ادھر کچن دیکھی، آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ اچانک مجھے اماں کی پکار پر رکنا پڑا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ماں غصے سے مجھے گھور رہی تھی۔ مجھے بازو سے پکڑ کر وہ مجھے دوبارہ مالکن کے کمرے کے سامنے لے کر آئیں اور کہا کہ خبردار کہ تم میرے بغیر بلائے اس کمرے سے باہر نکلی تو صاحب نے دیکھ لیا تو ہم دونوں کی شامت آ جائے گی۔ جب تک تو اس گھر میں مالکن کی خدمت کے لیے ہے تو اب تک اس کمرے سے باہر نہیں نکلے گی۔ جب تک میں تجھے نہیں بلاتی، میں جب تک تجھے آواز نہ دوں تو اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا، یہ اپنے دماغ میں بچھا لو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اماں ایسی کیا بات ہے کہ میں کمرے سے باہر بھی نہیں نکل سکتی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں ایک جگہ پر ٹک کر نہیں رہ سکتی۔ اماں نے مجھے غصہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں یہاں پر ایسے ہی رہنا پڑے گا، بیگم صاحبہ کی خدمت سے فارغ ہو جاؤ تو یہیں پر بیٹھی رہنا جب تک میں اپنے کام سے فارغ نہ ہو جاؤں۔ اماں نے مجھے دوبارہ مالکن کے کمرے میں بھیج کر وہاں سے چلی گئی اور میں حیران تھی کہ آخر ایسی بھی کیا نوبت آ گئی کہ میں باہر بھی نہیں جا سکتی۔ بیگم صاحبہ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ تم پانی پی کر آ گئی ہو؟ اب میں ان کو کیا بتاتی کہ میری اماں نے مجھے یہاں پر آنے کے لیے کیا ہدایت دی ہے۔ میں اپنا روزانہ کی طرح صبح یہاں پر آ جایا کرتی، اماں اپنے کاموں میں لگ جاتی اور میں مالکن کے کمرے میں چلی جاتی۔ میں مالکن پورے دن بستر پر ہی لیٹی رہتی تھی اور میں ان کی مالش کرتی
रहती थी। दोपहर के बाद अम्मा के सारे काम निमट जाते। उनके बाद हम दोनों घर पर आ जाया करते थे। मैं सोचती थी कि हमारे पीछे बेगम की मालिश कौन करता होगा या उन्हें कौन संभालता होगा, क्योंकि मैंने तो वहाँ पर कोई और नौकर नहीं देखा। एक दो बार मैंने मालकिन से पूछने की कोशिश भी की, मगर वे चुप रह गई थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने फिर भी दोबारा ये सवाल करना चाहा। मुझे बेगम साहिबा की बात समझ में नहीं आती थी कि वे बहुत अजीब सी औरत थी। कभी तो बहुत अच्छी हो जाती, तो कभी ऐसी हो जाती कि जैसे मुझे पहचानती ही नहीं हो। ना ही मैंने उनकी बहुत दिन से खिदमत की हो, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि वे बेचारी बीमार हैं, बिस्तर पर हों, तो इस हालात में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। मुझे वहाँ पर आते हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन मैंने अभी तक अमन साहब को नहीं देखा। मैं सिर्फ बेगम साहिबा के कमरे में ही रहती थी। यहाँ तक कि मेरा बहुत ही दिल चाहता कि मैं इस महल में घूमूं और देखूं ये घर कैसा है, लेकिन अम्मा की तरफ से हिदायत की कि मैं किसी भी समय कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। अम्मा ने जो जड़ी बूटी मुझे दी थी उसको एक क्रीम में मिक्स करके मालिश करती थी, लेकिन 1 हफ्ता हो गया और मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं लग रहा था। मैंने अगले दिन अम्मा से कहा कि अम्मा, तुमने मुझे जड़ी बूटी दे दी है, मालकिन को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अम्मा मुझे घूरते हुए कहने लगी कि तुम ज़्यादा बातें मत किया करो, ज़्यादा सोचा मत करो, ये हमारे तुम्हारे सोचने का काम नहीं है। वह जड़ी बूटी मुझे डॉक्टर ने दी है और कहा है कि उसको क्रीम में मिक्स करना है। तुम वही करो जो तुम्हें कहा गया है। मैं अम्मा की बात सुनकर चुप रह गई थी, लेकिन अम्मा फिर से मुझे वही हिदायत देने लगी कि मालकिन के कमरे से बाहर निकलकर नहीं आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे उनकी बातों पर हैरानगी होती थी। न अकेले कमरे में बैठे थक जाती थी, बेगम साहिबा से बोला नहीं जाता था, मैं अपना दिल किससे लगाती। मैंने कई बार अम्मा से कहा कि जब बेगम साहिबा सो जाती हैं तो मुझे आवाज़ दे दिया करो, मैं बाहर आकर तुम्हारे कामों में हाथ बटा दिया करूँगी। लेकिन माँ कहती थी कि नहीं, तुम इस काम के लिए मैं यहाँ पर लेकर नहीं आई हूँ, बस तुम वही काम किया करो जो मैंने तुम्हें दिया है। अगर अमन ने देख लिया कि तुम घर के दूसरे कामों में भी लगी हो तो वह हम दोनों को ही इस नौकरी से निकाल देगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, और मैं भी तो नहीं चाहती थी। इसी वजह से मैं चुपचाप अम्मा की बात सुनकर उसी कमरे में रहती थी। अगर साहिब मुझे नौकरी से निकाल देते तो मुझे तनख्वाह भी नहीं मिलती और मेरे ख्वाब अधूरे रह जाते। इसलिए दिल पर पत्थर रख कर मैंने वहीं पर रहने का इरादा कर लिया। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, आज मैं काम पर नहीं जा सकती हूँ, तुम खुद ही आज सब कुछ देख लेना। तो अम्मा मुझे कहने लगी कि आज तो हर हाल में जाना ही है, आज अमन भी घर पर होंगे, हम छुट्टी नहीं कर सकते हैं। मैंने बहुत कहा कि आप छोटी बहन को ले जाओ, अगर कुछ काम भी कराना है तो उसी से करा लेना, मगर अम्मा तो मुझे ही साथ ले जाने पर पड़ी हुई थी। आखिरकार मुझे अम्मा की वजह से वहाँ पर जाना पड़ा और मैं बीमारी की हालत में भी उनके साथ काम पर आ गई थी। मैंने थोड़ी देर ही मालकिन की मालिश की तो मैं पूरी तरीके से थक गई थी, क्योंकि मेरी अपनी हालत भी ठीक नहीं थी। मालकिन को भी समझ में आ रहा था कि मैं बीमार हूँ, तो उसने मुझे इशारे से कहा कि तुम आज छुट्टी करो और घर पर चली जाओ। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे वहाँ पर छुट्टी करके घर पर चले जाना चाहिए। मैं कमरे से बाहर निकलकर अम्मा को ढूंढने लगी। अब मुझे एक कमरे में सफाई की खातिर अंदर जाते ही नज़र आई। मैं अम्मा के पीछे चली गई। इससे पहले कि अम्मा दरवाज़ा खोल कर अंदर चली जाती, मैंने उन्हें रोक लिया था। वो तो मुझे देखकर एकदम से परेशान हो गई। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कमरे में वापस जाओ जल्दी। इतनी देर में अमन साहब कमरे से बाहर निकल कर आ गए। मैंने अमन को पहली बार देखा और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने कमरे में आते ही मुझे देखना शुरू कर दिया और मेरी माँ से कहने लगे कि तुम्हारी बेटी है, इसलिए मैंने इसे नौकरी पर रखा है कि इधर उधर ताका झाकी ना करे। ये तुम्हारी बेटी है, इसलिए इसे आखिरी मौका दे रहा हूँ, और अगर
कोई और होता तो उसे नौकरी से निकाल देता। जब मैंने कहा था कि 1 मिनट के लिए भी मेरी बीवी से दूर नहीं होगी, तो फिर यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कोई मेरी सुन ही नहीं रहा था। अम्मा मुझे जल्दी से लेकर कमरे में गई और मुझे डांटने लगी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कमरे से बाहर मत निकलो, मेरी तबीयत ख़राब थी अम्मा। अम्मा ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुझे ज़बरदस्ती कमरे में वापस भेज दिया। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा और अजीब से ख़यालात भी मन में आ रहे थे कि आखिर कमरे में ही रहने का क्या जवाब बनता है। अमन साहब क्यों नहीं चाहते कि 1 मिनट के लिए भी कमरे से बाहर निकलूं? और हैरानी वाली बात तो ये थी कि वे घर पर ही होते थे और अपनी बीवी के पास नहीं जाते थे। मुझे अम्मा की बातें भी झूठी लगती थी। अम्मा कहती थी कि अमन अपनी बेगम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बेगम साहिबा बेचारी अपने पति के लिए तरसती रहती थी और मैंने इनके पति यानी अमन को उनके साथ बात करते भी नहीं देखा। और यही बात जब मैंने अम्मा से कही तो कहने लगी कि हमें क्या लेना देना है उनके मामलों से। ये भी तो हो सकता है कि जब हम काम से छुट्टी कर जाते हों तो अमन अपनी बेगम के कमरे में जाते हों। बहरहाल जो भी हो, मुझे उनके घर जाना अच्छा नहीं लगता था और अमन साहब तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन जाहिर है हम गरीब मजबूरी के लिए ही घर से निकलते हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ा। लेकिन ये बात मेरे दिल में शक पैदा कर चुकी थी कि ज़रूर कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से अमन मुझे कमरे से बाहर निकलने के लिए नहीं कहते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि हम काम करके वापस आ चुके थे। अम्मा पड़ोसी से मिलने गई थी कि मुझे अचानक याद आया कि एक ज़रूरी काम तो रह ही गया है। आज मेरी छोटी बहन की सालगिरह थी और जब मैंने ये बात मालकिन को बताई तो उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि मैं उनसे जाते हुए कुछ पैसे ले जाऊं और अपनी बहन के लिए कपड़ा ख़रीद लूं। और आते हुए मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा था। अम्मा तो घर पर ही नहीं थी, इसलिए मैंने अच्छा मौका समझकर वे पैसे अपनी बेगम साहिबा से लेने चली गई और अम्मा को पता भी नहीं चलेगा और मैं जल्दी से किसी को भी बताए बिना वहाँ से चली गई। चौकीदार मुझे देखकर हैरान हुआ और मुझे गौर से देख रहा था। पहले तो वह मुझे जाने नहीं दे रहा था, फिर मैंने कहा कि ये क्या बात हुई, मैं तो अंदर जाऊंगी और मैं उसे पीछे करती हुई अंदर चली गई। मसलसल मुझे आवाज़ में मुझे पुकार कर पीछे आ रहा था। मैंने लॉन्च में कदम रखते ही एक अजीब मंजर देखा कि बेगम साहिबा के कमरे से तो अम्मा निकल रही थी। मैं माँ को देखकर हैरानी में पड़ गई और मैंने शक करते हुए पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो? अम्मा भी घबरा गई। अम्मा से भी जवाब नहीं दिया जा रहा था। वे मुझे क्या जवाब देती? साहब भी कमरे से बाहर निकल कर आ गए थे। मुझे ये मामला कुछ गड़बड़ सा नज़र आ रहा था। मेरी माँ का बगैर बताए यहाँ पर आना कोई तो बड़ी वजह थी। खैर मैंने अम्मा पर अपना शक ज़ाहिर नहीं किया और अम्मा के साथ घर पर वापस आ गई। मैं हरगिज़ भी वही सोचना नहीं चाह रही थी जो मेरे दिमाग में आ रहा था, लेकिन मेरी जगह कोई भी होता तो इन हालात में और इस वाक़ये को देखने के बाद यही सोचता कि ज़रूर मेरी अम्मा और साहिब के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। अब मुझे ये पता करना था कि असल मामला है क्या। मैंने अम्मा को साहिब पर नज़र रखना शुरू कर दिया। मुझे कुछ दफ़ा ऐसा महसूस हुआ कि अम्मा और मालिक वह आपस में इशारों में कोई बातें कर रहे हैं। शायद यही वजह थी कि अम्मा मुझे इस कमरे से बाहर नहीं निकलने देती थी ताकि मैं उनकी कोई भी चोरी ना पकड़ लूं। कि मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे अम्मा जानबूझकर मुझे इस कमरे में कैद रखती हैं, क्योंकि पहले भी अक्सर ऐसा होता था। जब मैं और अम्मा काम से वापस आ जाते थे तो दोबारा घर से वापस चली जाती थी। कहती थी कि पड़ोसन के पास जा रही हूँ, कभी तो किसी और बहाने से, लेकिन मुझे शक नहीं हुआ। मुझे तो यही लगता था कि वे पड़ोस ही गई होंगी। लेकिन ये सब देखकर मैं समझ गई कि रोज़ाना मुझे घर छोड़कर दोबारा कहाँ जाती हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। 1 महीना हो गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक डॉक्टर रोज़ मालकिन का चेकअप करने आती थी। अब तो मुझे उस पर भी विश्वास नहीं रहा। जो क्रीम इस्तेमाल करके मैं मालकिन के लगाती थी, मैं अपने अंदाज से अपनी माँ से कहा कि अम्मा आज के बाद मैं जड़ी बूटी से मालकिन की मालिश नहीं करूँगी,
क्योंकि मुझे इससे कोई भी फ़ायदा नहीं लग रहा। मैं डॉक्टर से कुछ दवाई ले लूँगी और उनके लिए कोई अच्छी सी क्रीम लेकर आऊँगी। अम्मा कहने लगी कि तुम्हें मालकिन की सेहत की इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। उसका पति है, उसकी सेवा कर सकता है। हमें क्या ज़रूरत है परवाह करने की? ठीक हो जाए, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी तनख्वाह से मतलब होना चाहिए जो तुम्हें मिल रही है। अम्मा की ये बात सुनकर मैं हैरानी में पड़ गई कि अम्मा ये बात कैसे कर सकती हैं। अम्मा चाहती ही नहीं कि मालकिन सही हो। ये ख्याल मेरे दिल में आ रहा था कि शायद अम्मा इस घर की मालकिन बनने का ख्वाब तो नहीं देख रही हैं। लेकिन फिर मैं अपने आप को झूठा साबित कर दिया कि अम्मा ऐसी नहीं कर सकती। कुछ दिनों बाद ये हुआ कि मैं मालकिन की मालिश कर रही थी। अचानक मालकिन की तबीयत ख़राब होने लगी थी। उन्हें ज़ोर ज़ोर से झटके लगने लगे थे। उनकी हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँगी। बेगम साहिबा मुझे इशारे से दवा का कहने लगी तो मैंने पूछा कि कौन सी दवा। उसने इशारे से कहा कि अमन के कमरे में एक दवा है, वहाँ से दवा ला दो। मैं सोच में पड़ गई कि इस कमरे से बाहर निकली या ना निकलूँ। अगर अम्मा ने मुझे इस कमरे से बाहर निकलते हुए देख लिया, क्या मेरी शामत आ जाती? क्योंकि कमरे से बाहर निकली तो मेरे महीने की तनख्वाह मुझे नहीं मिलेगी। कुछ पल में सोचती रही, लेकिन फिर यही सोचा कि एक इंसान की जान की मेरी तनख्वाह से ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे डांट लगेगी, मेरी तनख्वाह कट जाएगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मालकिन की जान तो बच जाएगी। फिर मैं ये सोचकर जल्दी से इस कमरे से बाहर निकल कर आ गई। बाहर निकल कर देखा तो मुझे माँ कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं अमन के कमरे की तरफ बढ़ी। अमन के कमरे में कुछ आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मैं कुछ घबराई हुई थी, इसलिए दस्तक दिए बिना मैंने कमरे के दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ का मंजर देखकर मेरे सर पर तो क़यामत टूट पड़ी थी। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं ये मंजर देख रही हूँ। अमन साहब एक औरत के साथ कमरे में मौजूद थे और वह औरत को पहचानने में मुझसे ज़्यादा देर नहीं लगी। वे बेगम साहिबा की डॉक्टरनी थी जो मालकिन का चेकअप करने के लिए आती थी, और उसको इस हालत में मालिक के साथ देखकर मैं दंग रह गई। मैंने क्या सोचा था, मुझे क्या देखने को मिला। अगर ये औरत साहब एक साथ थे तो मेरी माँ कहाँ पर थी? लेकिन अब ये वक्त सोचने का नहीं था। मैंने टेबल से मालकिन की दवाई उठाई और वापस पलट कर कमरे की तरफ चली गई। जाकर वे दवाई मैंने मालकिन के मुंह में रखी तो थोड़ी देर बाद बेगम साहिबा की तबीयत ठीक हो गई। थोड़ी देर बाद अम्मा के पास आई और मुझसे कहने लगी थी कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी कमरे से बाहर निकलने की? मैंने मना भी किया था ना तुम्हें। मैंने कहा कि अम्मा मुझे तुम सब कुछ सच सच बता दो, ये सब क्या चल रहा है? आपका इन दोनों के साथ क्या मामला था और तुम्हारा इस खेल में क्या किरदार है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम कहीं ना कहीं इस खेल में शामिल हो। माँ कहने लगी कि तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। असल में बेगम साहिबा के एक्सीडेंट के बाद अमन साहब का रवैया अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। वे अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहते थे, बल्कि इनका तो चक्कर बेगम साहिबा के एक्सीडेंट से पहले ही चल रहा था। जो डॉक्टर साहिबा बेगम साहिबा का चेकअप करने के लिए आती हैं, असल में वही साहब के साथ रहती हैं। मुझे साहब ने कहा था कि तुम अपनी बेटी को मालिश के लिए बुला लो, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका ये राज और किसी को पता चले। साहब ने मुझे जबान बंद करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि उनके अफेयर के बारे में बेगम और किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए तुम्हें सिर्फ बेगम साहिबा के कमरे में ही रखती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कुछ भी साहब के बारे में पता चले, और मैं जानती थी कि जिस दिन तुम्हें सच पता चल गया तुम बेगम साहिबा को सब कुछ बता दोगी। जो डॉक्टर बेगम साहिबा का चेकअप करती थी वे चाहती ही नहीं थी कि मालकिन ठीक हो, और ये जो दवाई तुम मालकिन को देती हो, ये जिससे तुम उनकी मालिश करती हो, उससे तो मालकिन कभी ठीक ही नहीं होंगी, क्योंकि साहब नहीं चाहते कि मालकिन अब ठीक हो। आज भी मैंने उन्हें यह बात इसलिए बता दी क्योंकि अब मैं भी नहीं चाहती थी कि मालकिन को अंधेरे में रखा जाए, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर आ गया है। कल साहब डॉक्टरनी से बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मालकिन को धीरे धीरे जहर देना शुरू किया जाएगा, क्योंकि ये उन्हें मारना ही चाहते हैं। यह बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और कल से मैं परेशान थी, मैं कैसे मालकिन को बचाऊं। तभी मैंने अपनी माँ को बताया और कहा कि आपने पैसों के लिए इतना कुछ किया, आपको ज़रा भी ख्याल मालकिन का नहीं आया जो हमारे लिए इतना कुछ करती हैं। मेरी माँ रोने लगी और कहने लगी मुझसे कैसे हो गया, लेकिन क्या करूँ,
पैसों की कमी की वजह से मैंने यही किया है, लेकिन अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। तभी मैं दोनों मालकिन के पास गए और उन्हें सच्चाई बता दी। माँ के पास कुछ सबूत भी थे जिसे देखकर मालकिन ने पूरा यकीन कर लिया। कुछ देर ही बाद मालकिन ने अपने घर वालों और उनको भी बुला लिया और अपने पति को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि सारी जायदाद मालकिन की ही थी, क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें शादी में दी थी, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी थी। कुछ दिनों के बाद सुनने में ये भी आया कि साहब को डॉक्टरनी में भी छोड़ दिया, क्योंकि ये डॉक्टरनी साहब के साथ इसलिए ही थी क्योंकि वे समझती थी कि सारी जायदाद ये साहब की है। जब उसे पता चला कि साहब के पास कुछ नहीं बचा तो उसने साहब को भी छोड़ दिया। आज साहब न घर के रहे न घाट के, और मालकिन ने मेरी माँ को भी माफ़ कर दिया। धन्यवाद दोस्तों।